لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يغلب تحته القائلون ولا يؤذي معه الآلون ولا يؤذي حقه المسلمون الذي ليس يجوز به حج محكوم ولا نادي موجود ولا بخت معلوم ولا عدل منصوب فتر الخلائق بقدرته النصير يا هادي رحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى القرنين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد محمد عجل فرج الطيبين الطاهرين الماهرين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله ونور الذي أنزلنا درود پڑھیں پر محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، دیکھو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ایسا نور کہ جس کو رسول ساتھ میں لے کر آئے۔ یقیناً مولا حسین ایسا نور ہے، دیکھنے میں یہ ایک نور ہے لیکن آدم کا بھی وارث ہے، نوح کا بھی وارث ہے، زکریا کا بھی وارث ہے، موسیٰ کا بھی وارث ہے، عیسیٰ کا بھی وارث ہے، یحییٰ کا بھی وارث ہے، ابراہیم کا بھی وارث ہے، یعقوب کا بھی وارث ہے، یوسف کا بھی وارث ہے، 1,23,999 انبیاء کا وارث ہے، آخری رسول کا وارث ہے، اپنے بابا جان کا وارث ہے، اپنے بھائی کا وارث ہے، ساری دنیا کی شیعوں کا وارث ہے۔ اگر آج پوچھا جائے کہ پورے اسلام کا محافظ کون ہے تو سب سے پہلے جو نام لیا جائے گا وہ مولا حسین کا نام لیا جائے گا، آقا حسین کا نام لیا جائے گا، سب سے پہلے آقا حسین کا نام آئے گا۔ یہ ایسا محافظ ہے، تنہا دین کو بچانے کے لیے امام حسین نہیں چلے ہیں، اس لیے کہ سامنے جو آنے والا ہے وہ اکیلے نہیں آیا تھا بلکہ سب کو ساتھ میں لے کر آیا تھا، اپنے ساتھ خواہش و عذاب لے کر آیا تھا، اپنے اندر خواہش و پلیدگی لے کر آیا تھا، اپنے اندر قارونیت لے کر آیا تھا، اپنے اندر فرعونیت لے کر آیا تھا، اپنے اندر نمرودیت لے کر آیا تھا، اپنے اندر جتنے بھی ابلیس اور شیاطین تھے ان سب کا وارث بن کر آیا تھا۔ لہذا امام حسین نے کہا اگر چاہے جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کا وارث اگر یزید بن کر آیا ہے تو جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان سب کا وارث حسین بن کر آیا ہے۔ دین کو بچا کر چھوڑے گا، شریعت کو بچا کر چھوڑے گا، اسلام کو بچا کر چھوڑے گا۔ اس لیے ایسا موقع آ گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سارا دین اسلام مٹ جائے گا، سارا دین اسلام خالی ہو جائے گا، لیکن مولا حسین نے، آقا حسین نے لبیک کہتے ہوئے صرف رسول اللہ کے دین کو نہیں بچایا، رسول اللہ کی شریعت کو نہیں بچایا بلکہ سارے انبیاء کو بچایا، سارے اولیاء کو بچایا، سارے اولیاء کو بچایا، ساری آسمانی کتابوں کو بچایا۔ درود پڑھیں پر محمد محمد وآل محمد۔ کبھی کبھی مجلس میں، محفل میں اعتراض ہوتا ہے اور اعتراض کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے کہ اتنے سارے اولیاء کرام ہیں، اتنے سارے انبیاء کرام ہیں، کسی کے لیے یہ جملہ نہیں ملتا، مولا حسین کے لیے ملتا ہے کہ جب چاہیں آپ جسے چاہیں جنت دے دیں، جسے چاہیں آپ شریعت کا علم دے دیں، جس کی چاہے آپ توبہ قبول کر کے اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دیں۔ آخرکار مولا حسین کو، آقا حسین کو اتنا بڑا اختیار ملا کیسے؟ اس کی مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مولا حسین نے کیا کیا ہے اس تمام خدائی کو لینے کے لیے، اس تمام مخلوقات پر اپنا اختیار رکھنے کے لیے؟ آج ساری کائنات میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مولا حسین کے دین اختیار میں ہیں۔ جنت بھی حسین کے اختیار میں، پورے صراط بھی حسین کے اختیار میں، اللہ کی مرضی مولا حسین کے اختیار میں۔ یعنی اگر کوئی توبہ کر لے مولا حسین چاہے تو اسے بخشوا دے، اگر کوئی سچی نیت سے، سچے دل سے اگر توبہ کر لے اور مولا حسین کی بارگاہ میں آ جائے، مولا حسین نے، آقا حسین نے مثال قائم کر دیا ہے، بھول کو معاف کر کے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ دیکھو یہ اختیار صرف کربلا ہی میں نہیں تھا،
1400 साल के बाद तुम फर्श अदा पर आओ, इस नियत से जिस तरह से हुर को माफ किया है इसी तरह से तुम्हें भी माफ कर दूंगा। तुम तौबा तो करके देखो, इस्तग़फ़ार तो करके देखो, नादिम को तो होकर के देखो, अल्लाह की बारगाह के कायल को होकर के देखो। इतना अख्तियार मौला हुसैन को मिला कैसे, इतना अख्तियार मौला हुसैन को मिला कैसे? इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब तक बच्चे की तैयारी कराई जाती है, बच्चे की तैयारी में सबकी मदद रहती है। अगर उस्ताद चाहे तो तैयारी करवा दे, अगर वालिदैन पढ़े लिखे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो बाप चाहे तो दखलंदाजी कर दे, माँ चाहे तो जवाब दे दे। इसलिए कि एक ऐसा मौका आ जाता है कि जब बच्चा पढ़ते पढ़ते 24-25 साल तक पढ़ के यहाँ तक पहुँच गया, अब ये चाहे जैसा भी इम्तिहान देगा जिसके ज़रिए से ये फला ऑफिसर बनेगा। ऑफिसर का मतलब ये है कि ऑफिस के अख्तियार में, पूरा शहर इसके अख्तियार में, सारे बड़े लोग इसके अख्तियार में, सारी कौम इसके अख्तियार में। हुआ क्या, अभी जब तक ये ऑफिसर नहीं बना था तो सारे लोग इसकी मदद कर रहे थे। ट्यूशन लगवाया गया, अच्छे से अच्छा टीचर रखा गया ताकि अच्छे से तैयारी हो सके। इसलिए अब ये जब ऑफिस में गया, आखिरी इंटरव्यू है, आखिरी पेपर है, अगर देखिए अब ये अकेला जाएगा, कोई भी साथ में नहीं जाएगा। अगर कोई कहे कि 24-25 साल से तो आप मदद कर रहे थे, आप सब कुछ बता रहे थे, कहा नहीं, अब ये इम्तिहान का वक्त है, अब ये अकेला जाएगा। अगर ये इम्तिहान में कामयाब हो गया, सारी वहदानियत इसके इख्तियार में, ये शहर का डीएम बन जाएगा, सारा शहर इसके हवाले कर दिया जाएगा। इसी तरह से मौला हुसैन के बारे में एतराज़ किया जाता है कि सारी दुनिया तो या अली मदद कहती है, लेकिन मौला अली मौला हुसैन की मदद के लिए करबला में क्यों नहीं पहुँचे? इसलिए कि सारी ज़िंदगी मौला हुसैन को तैयार करवाया है। इसलिए कि करबला का मैदान इम्तिहान का मैदान था। इसलिए ना बाप ने मदद किया, ना भाई ने मदद किया, ना माँ ने मदद किया। इसलिए कि अगर आज हुसैन कामयाब हो जाएगा तो सारी वहदानियत इसके अख्तियार में, सारी दुनिया इसके हाथ में, सारी कायनात इसके हाथ में, सारी इसके हाथ में, जन्नत इसके हाथ में, शिफात इसके हाथ में, नजात इसके हाथ में, बख्शिश इसके हाथ में, अल्लाह की मर्जी इसके हाथ में। दुरूद पढ़े वर मोहम्मद। यही नहीं, देखिए एक एतराज़ और किया जाता है, आजकल इंसानों में बहुत चल रहा है, लिखा जा रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह तो मना कर दें लेकिन मौला हुसैन एक नहीं 7 बेटे राहिब को दे दें। ये कैसे हो सकता है? मौला हुसैन, आका हुसैन रसूलुल्लाह के मना करने के बावजूद राहिब को 7 बेटे अता कर दें। राहिब आया रसूलुल्लाह के पास, कहा या रसूलुल्लाह मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मुझे औलाद अता कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने लोहे महफूज की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, कहा राहिब तेरे मुकद्दर में, तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है। अब राहिब मायूस होकर जा रहा था। अब मौला हुसैन ने देखा कि राहिब मायूस होकर जा रहा है, मायूस उदास है, दुखी है, तो मौला हुसैन आए, कहा राहिब क्या हुआ, इतना मायूस क्यों हो, इतना उदास क्यों हो? राहिब ने कहा अरे बच्चे मेरे सामने हट जा। मौला हुसैन ने कहा राहिब सर को तो उठा करके देख, जिसे ज़मीन पर शब्बीर कहते हैं उसे आसमान पर तकदीर कहते हैं। उसे आसमान पर तकदीर कहते हैं। एक बार राहिब ने कहा मैं रसूलुल्लाह के पास गया था, कहा या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, मुझे औलाद अता कर दीजिए, बेटे अता कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। तो मौला हुसैन ने राहिब को साथ में लिया, रसूलुल्लाह के पास आए, कहा नाना राहिब को औलाद अता कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने फिर लोहे महफूज की तरफ देखा, कहा बेटा हुसैन इसके मुकद्दर में, इसकी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है। इधर रसूलुल्लाह मना करते हैं, मौला हुसैन कहते हैं मैंने 1 दिया, मैंने 2 दिया, मैंने 3 दिया, मैंने 4 दिया, मैंने 5 दिया, मैंने 6 दिया, मैंने 7 दिया। ये कैसे हो सकता है? नाना तो मना कर दे, नवासा दे दे। ये कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह मना कर रहे हैं, मौला हुसैन अता करते चले जा रहे हैं। देखिए ये बच्चे की तरबियत की बात होती है। जब घर के सभी बड़े अफराद मौजूद हों, जहाँ पर दादा भी मौजूद हो, बाप भी मौजूद हो, भाई भी मौजूद हो, सभी लोग मौजूद हैं, घर के सभी अफराद मौजूद हों, इतने में कोई फ़कीर आ जाए दरवाजे पर, तो फ़कीर को देने के लिए दादा नहीं जाता है दरवाजे पर,
बाप नहीं जाता है दरवाजे पर, बल्कि अपने बच्चे को भेजता है सखी बनाने के लिए, ताकि बेटा जाओ तुम इस्तिफादा कर दो। हालांकि इस्तिफादा की बात मौजूद है, आई है, वो यानी मौला हुसैन से दिलवाना चाहते हैं। देखो जैसी सखावत हुसैन की है वैसी सखावत अली की है, वैसी सखावत रसूलुल्लाह की है। वाह 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 वाह। यानी दिलवाना चाहते, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर ये आदत डाली जाती है ताकि बच्चा खैरात करने का माहिर हो जाए, सखावत करने का माहिर हो जाए। ये तो चलो अकली तौर पर जवाब है। दूसरा जवाब क्या है, आप स्टेशन पर जाके देखें, आजकल बहुत भीड़ चल रही है, बहुत मुश्किल से टिकट मिल पाता है। आप स्टेशन पर गए, कहा मुझे लखनऊ जाना है या मुंबई या हैदराबाद जाना है, आप गए, आपने कहा मुझे टिकट चाहिए, उसने चेक किया, फौरन कहा आपका टिकट कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। आपने सोचा चलो इस्लामाबाद से नहीं मिल रहा है तो फिरोजाबाद से मिल जाएगा, फिरोजाबाद से नहीं मिल रहा है तो आगरा से मिल जाएगा। उसने एक नज़र में बता दिया कहीं से भी तुम्हारा टिकट मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से रिसालत माब ने लोहे महफूज की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, कहा तेरे मुकद्दर में, तेरी किस्मत में कोई भी बेटा नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है। तो इसी तरह टिकट चेक करने वाले ने देख के बताया, कहा तुम्हें अब टिकट कहीं से भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि सीट फुल हो चुकी है। तो पता ये चला, जहाँ तक रिसालत की बात थी, रिसालत माब ने कहा कि तुम्हारे मुकद्दर में कोई बेटा नहीं है। तो देखिए रिसालत माब ने कहा तेरे मुकद्दर में कोई बेटा नहीं है। अब ये टिकट लेने गया, टिकट इसको नहीं मिला। अब ये सामने से आ रहा था, एक साहब ने देखा, कहा क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो, इतना दुखी क्यों हो। उसने कहा कि मैं टिकट लेने गया था लेकिन टिकट नहीं मिला। कहा तो परेशान क्यों होते हो, मैं इस इलाके का एमएलए हूँ, मैं इस इलाके का एमपी हूँ, मेरे एमपी का कोटा अलग होता है, एमएलए का कोटा अलग होता है। लिहाजा उसने कहा चलो मैं अपने अख्तियार से अपने कोटे से दिलवा देता हूँ। इसी तरह से रिसालत माब ने कहा तेरे अख्तियार में कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं है। तो मौला हुसैन ने कहा नाना अगर आप नहीं दे सकते तो मेरा भी कोटा इस्मत का है, मेरा कोटा भी इमामत का है, मैं अपने अख्तियार से दे सकता हूँ। लिहाजा मौला हुसैन ने राहिब को 7 बेटे अता किए। दुरूद पढ़े ये ऐसा दर है, इस दर पे जो भी आया खाली हाथ नहीं लौटा, इस दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, सबको मौला हुसैन ने अता किया। देखिए जब मौला हुसैन की विलादत हुई, तमाम फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे थे। तो जिब्राइल एक जदीरे में पड़े हुए थे, एक गड्ढे में पड़े हुए थे। फितरुस ने देखा कि तमाम फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। फितरुस ने जिब्राइल से कहा अखी जिब्राइल क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, क्या क़यामत आ गई। जिब्राइल ने कहा क़यामत नहीं आई है, इमामत आई है। फितरुस ने कहा ऐ जिब्राइल मुझे भी दरे हुसैन पर लेकर चल। मैं कहूँगा ऐ फितरुस अगर तुम्हें बालों पर चाहिए थे नमाज पढ़ लेते, रोज़ा रख लेते, हज कर लेते, रोज़ा रख लेते, नमाज पढ़ लेते, तस्बीह पढ़ लेते, बालों पर मिल जाते, बालों पर मिल जाते। कहा ये हुसैन के दर पर जाने की क्या जरूरत थी। कहा हुसैन के दर पर जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इनके वसीले से कुछ नहीं मिलने वाला, इनके वसीले से कुछ भी नहीं मिलने वाला। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए मुझे किसी रिवायत में नहीं मिला, किसी किताब में नहीं मिला कि फितरुस ने कहा हो कि जिब्राइल मुझे दर हुसैन पर लेकर चल, और जिब्राइल ने कहा कि रुक जाओ पहले मैं अल्लाह से पूछ लूँ। किसी किताब में किसी रिवायत में नहीं मिला कि फितरुस ने अल्लाह से पूछा हो परवरदिगार मैं जिब्राइल ने पूछा परवरदिगार मैं फितरुस को दर हुसैन पर लेकर जाऊँ कि ना ले जाऊँ। नहीं, जिब्राइल बताना चाहते हैं यही तो जरिया है अल्लाह तक पहुँचने का। अगर हुसैन तक पहुँचोगे तो अल्लाह तक पहुँचोगे, अगर हुसैन तक पहुँचोगे तो अल्लाह तक पहुँचोगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब फितरुस आए दर हुसैन पर तो मौला हुसैन रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि मौला हुसैन के जिस्म से अपने आप को मत कर लो, बल्कि कहा मौला हुसैन के गहवारे से अपने आप को मत कर लो। फितरुस गया, मौला हुसैन के गहवारे से अपने आप को मत किया। यानी रसूलुल्लाह को मालूम था कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि हम अलम को मानेंगे, गहवारे को मानेंगे, ताबूत को मानेंगे, दरी को मानेंगे, दुलजना को मानेंगे, अलम और तमाम चीज़ों के सामने अपने हाथ फैलाएंगे। दुनिया हम पर एतराज़ करेगी, साहब ये क्या बिदात कर रहे हो। मैं कहूँगा या रसूलल्लाह आप भी मौजूद हैं, मौला हुसैन भी मौजूद हैं,
इतना बड़ा मलक आया हुआ है, आपके जिस्म से मस कर लेता, मौला हुसैन के जिस्म से मस कर लेता। ये गहवार तो लकड़ी का बना हुआ है, आप ये लकड़ी के गहवारे की कीमत करवा रहे हैं। अजब नहीं कि रसूलुल्लाह जवाब देना चाहते हो, देखो हर दौर को हुसैन का बदन नहीं मिलेगा, हर दौर को हुसैन का बदन नहीं मिलेगा, इसलिए हर दौर को मासूम का जिस्म नहीं मिलेगा। इसलिए मासूम जहाँ पर बैठ जाए वो जगह भी बरकती हो जाती है, जहाँ पर मासूम आराम कर ले वो जगह भी बरकती हो जाती है। यानी रसूलुल्लाह बताना चाहते हैं, देखो जिस तरह से हुसैन बरकत दे रहे हैं, इसी तरह दुलजना भी बरकत दे सकता है, गरीब भी बरकत दे सकती है, अलम भी बरकत दे सकता है, ताजिया भी बरकत दे सकता है, गहवारा भी बरकत दे सकता है। तुम गुरु से दिल से तो मांगो, दुरूद पढ़े पर मोहम्मद। देखिए ये सिर्फ जिब्रील ही नहीं, बल्कि जब मौला हुसैन की विलादत हुई, एक और फरिश्ता एक जजीरे में पड़ा हुआ था, उसके मुंह पर अजाब हो चुका था। जो परवरदिगार आलम का जो हुक्म था वो उसको पूरा नहीं कर पाया था। एक जजीरे में पड़ा हुआ था। जब मौला हुसैन की विलादत हुई तो तमाम फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे थे, मदीने की तरफ आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए। तो जिब्राइल जो तब उस देखिए यहाँ पर मौला रसूलुल्लाह ने दो काम किए। वो दो काम किया है, वो दो काम ये है कि जब बितरुस आया तो उसने कहा कि जाओ हुसैन के गहवारे से अपने आप को मत कर दो। लेकिन जब ये मलक आया तो इससे ये नहीं कहा, बल्कि जब ये मलक आया कहता या रसूलुल्लाह मुझे भी शिफा चाहिए, मुझे भी शिफा लेनी है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हुसैन मेरी आगोश में है, आओ हुसैन के हाथ पर हाथ रख दो, शिफा मिल जाएगी। मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह अगर आप चाहते तो दोनों को वहाँ पर भेज देते, अगर आप चाहते तो दोनों को यहाँ पर बुला लेते, अगर आप चाहते तो दोनों को वहाँ पर भेज देते, अगर आप चाहते तो दोनों को यहाँ पर बुला लेते। यानी रसूलुल्लाह बताना चाहते हैं, देखो हो सकता है कि कोई इशारा कर जाए कि वो गहवारा फला इंसान ने बनाया था, फला शहर में बनाया गया था, वो दरख्त कितना बरकती था, ये हुसैन की बरकत नहीं थी, ये लकड़ी की बरकत थी। और रसूलुल्लाह ने बताया कि वो चीज़ भी शिफा दे सकती है जो चीज़ हुसैन से मंसूब हो जाए, जो चीज़ हुसैन से मत हो जाए। यानी हुसैन का वजूद भी बरकती है, हुसैन का जिस्म भी बरकती है। दुरूद पढ़ पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने आप लोगों की जन्नत को तमाम किया। आज मुझे करबला के सबसे पहले शहीद दिखाई पड़ना। करबला के सबसे पहले शहीद कौन है? जनाब मुफ्ती इब्न अकील। हाँ जी, जनाब मुफ्ती इब्न अकील सबसे करबला के सबसे पहले शहीद है। कूफे से मौला हुसैन के पास खतूत आए, मौला हुसैन ने खतूत को पढ़ा, उसके बाद जनाब मुस्लिम को बुलाया, अपना नायब बनाकर कूफे में जनाब मुस्लिम को भेजा। जनाब मुस्लिम कूफे में गए। कूफे जब पहुँचे हैं जनाब मुस्लिम तो 18,000 लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथों पर बैत की है। देखिए अभी ये 18 लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथों पर बैत की है, लेकिन ये धीरे धीरे जनाब मुस्लिम का साथ छोड़ जाएंगे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, टाइम बढ़ता गया, मगरिब का वक्त आया, 30 अफराद बाकी, 30 अफराद बचे हैं। जैसे जनाब मुस्लिम मगरिब की नमाज के लिए खड़े हुए, क्या देखा, पीछे मुड़ के देखा, एक भी अफराद मौजूद नहीं था। जनाब मुस्लिम अकेले हैं, तनहा है, कोई मोनी को मददगार नहीं है। जनाब मुस्लिम एक ज़ईफ़ा के दरवाजे पर जाकर बैठ जाते हैं। उस ज़ईफ़ा का नाम तारिक ने दुआ लिखा है, उसके दरवाजे पर जाकर बैठ जाते हैं। वो ज़ईफ़ा अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है जो कि बाहर गया हुआ था। तो उसने दरवाज़ा खोल के देखा कि जनाब मुस्लिम दरवाजे पर बैठे हुए थे। वो ज़ईफ़ा कहती है, ऐ शख्स तुम कौन हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि कूफे के हालात बहुत ख़राब हैं, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? जनाब मुस्लिम कहते हैं, अरे ऐ ज़ईफ़ा जिसका घर ही ना हो वो कहाँ जाए? ऐ ज़ईफ़ा, ऐ मोहतरमा जिसका घर ही ना हो वो कहाँ जाए? वो ज़ईफ़ा कहती है, ऐ शख्स तुम कहाँ के रहने वाले हो? जनाब मुस्लिम कहते हैं कि मैं मदीने का रहने वाला हूँ। वो ज़ईफ़ा कहती है, मदीने में किस जगह के रहने वाले हो? वो जनाब मुस्लिम कहते हैं कि मैं मोहल्ले बनी हाशिम का रहने वाला हूँ। कहा मोहल्ले बनी हाशिम में किसके बेटे हो? कहा मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। वो ज़ईफ़ा तड़प जाती है, अपने सरों सीनों को पीट लेती है, कहती है, अरे हमने अपने आका के नायब को ना पहचाना। हाँ अजीज़ों, वो ज़ईफ़ा जनाब मुस्लिम को घर में ले जाती है, घर के अंदर ले जाती है। हाँ अजीज़ों, जनाब मुस्लिम
نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے جناب مسلم کی آنکھ لگ جاتی ہے، جناب مسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں اے مسلم تم جلد ہی مجھ سے ملحق ہو جاؤ گے، تم جلد ہی مجھ سے ملاقات کرو گے۔ ہاں دیدو، جب جناب مسلم کی آنکھ کھلی کیا دیکھا؟ تلواروں کی آواز آ رہی ہے، دشمنوں نے ظالموں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ ہاں دیدو، جو طیفہ کا جو بیٹا ہے اس کو جب وہ گھر میں داخل ہوا اس کو پتہ چلا کہ جناب مسلم نے گھر میں پناہ لی ہے، اس نے دشمنوں کو خبر کر دی، گھر کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا۔ ہاں دیدو، جناب مسلم نے تلوار کو لیا، جیسے ہی گھر سے نکلنا چاہتے ہیں وہ طیفہ کہتی ہے ارے اے مسلم باہر نہ جاؤ، ان دشمن آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے۔ جناب مسلم کہتے ہیں اے مجھے معلوم ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ دشمن گھر کے اندر داخل ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے کسی خاتون کی عزت میں آ جائے۔ میں کہوں گا اے مسلم تمہیں اس طیفہ کی عزت کا اتنا خیال، ارے ذرا کربلا میں آئیے، ارے نبی رسول کی نوازیوں کو بے مکھنوں چادر پھرایا گیا۔ ہاں دیدو، جناب مسلم نے تلوار کو لیا، گھر سے باہر نکلے، ارے دشمنوں کو باطل جہنم کرتے جاتے ہیں۔ ایک ملعون ظالم کہتا ہے کہ یہ بنی ہاشم کا شہر ہے، اس کو ایسے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں دیدو، کہا کہ سب ایک ساتھ مل کر حملہ کرو، سب نے ایک ساتھ مل کر حملہ کرنا شروع کیا، کسی نے آگ پھینکا، کسی نے پتھر مارنا شروع کیا۔ ہاں دیدو، ایک خندق کھودی گئی، گڈھا کھودا گیا، اس میں جناب مسلم کو گرایا گیا، جناب مسلم کو قید کر کے ہاں دیدو عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ جب جناب مسلم عبداللہ ابن زیاد کے گھر میں دربار میں آئے ہیں تو جناب مسلم کہتے ہیں کہ مجھے پیاس نہیں ہے۔ جناب مسلم کے آگے پانی پیش کیا گیا، جناب مسلم نے پانی جیسے پینا چاہا اس میں خون گر جاتا ہے، جناب مسلم پانی کو واپس کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن زیاد جناب مسلم سے کہتا ہے اے شخص، اے مسلم تمہارا خلیفہ کون ہے؟ تم اپنا نائب کسے مانتے ہو؟ جناب مسلم نے کہا میں اپنا نائب اپنا خلیفہ حسین کو مانتا ہوں، میں حسین کے علاوہ کسی کو اپنا نائب نہیں مانتا۔ عبداللہ ابن زیاد کہتا ہے اے مسلم اگر تم مجھے اپنا خلیفہ اپنا نائب مان لیتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن مولا حسین نے کہا میرا نائب میرا خلیفہ حسین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا جائے، جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا جاتا ہے۔ ہاں دیدو، جب جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، امام حسین کو جناب مسلم کے شہید ہونے کی خبر ملی، جناب مسلم کے شہید ہونے کی خبر ملی، جناب امام حسین نے مسلم کے ننھے بچوں کو بلانے کے بعد پیار کرنا شروع کیا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، گوشوارے پہنائے۔ ہاں دیدو، یہ منظر حسین کی 4 سالہ بچی دیکھ رہی تھی۔ سکینہ یہ سمجھ رہی تھی جو یتیم ہو جاتا ہے اسے پیار کیا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ ہر سکینہ کو کیا معلوم تھا بعد شہادت امام حسین سکینہ کے تماچے مارے جائیں گے، گوشوارے چھینے جائیں گے۔